Good afternoon, everyone. Good afternoon, guys. Please let me know that voice is clear and the screen is audible. The screen is visible to you. Please confirm that the voice is clear and the screen is visible to you all. Good afternoon, Pramod. Pramod, can you please confirm? Okay, thank you. Chalo. So today we will be covering lecture number 4 and again another important topic, which is seed and sowing. So students, a part of this particular lecture, which is seed certification, that topic has been covered in detail in ARD simplified series, for which you will get the link in the description. Okay, if you want to cover the seed certification topic in detail, which is again a very important for your exam, so please you can watch that ARD simplified series as well. Right? I think everybody is. I think everything is fine, and we'll wait for few more minutes, but before that I wanted to show you our courses. Okay, so students, basically we have launched courses, so if you're interested in our courses and you wanted to prepare with us, so we have launched test series also for both phase 1 and phase 2, and we have launched crash course also. Okay, so there is a silver pack also if you want to prepare for the phase 2 plus interview with us. So these are our courses, and if you're interested you can explore our website for these courses. Clear? So I hope till now everybody has joined and we can start with the session, right? So let me tell you, seed and sowing is again important chapter है आपके examination के लिए, because यहाँ से phase 1 में, ठीक है, phase 1 में on and around 1 to 2 questions आपको मिलेंगे objective के. ठीक है, तो कहाँ से वो क्वेश्चंस रहते हैं, कौन से टॉपिक से रहते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल. So first, let's see question number 1. So question is what does seed rate indicate? Okay, what does seed rate indicates? So what will be the answer here? If you know the answer, please let me know in the chat section. ठीक है, seed rate से हमें क्या समझ आता है? Your options are the percentage of viable seeds, the number of seeds per hectare, the depth of sowing, the size of seeds, the water content in seed. ठीक है, what do you understand by seed rate? Seed rate क्या होता है? Okay, what do you understand by seed rate? If you know the answer, please let me know quickly in the chat section. Very good. Answer here will be number of seed per hectare. ठीक है, number of seeds per hectare. Only Vishal has given the correct answers. Very good, Vishal. So student, seed rate क्या होता है? It is the number of seeds that we are using to cultivate or to grow plant in 1 hectare of land. Okay, that will be seed rate. Seed rate, not percentage of viable seed. Percentage of viable seed is germination rate. ठीक है, तो जब हम जर्मिनेशन, देखो देर आर डिफरेंट थिंग. वन इज जर्मिनेशन परसेंटेज. ठीक है, वन इज जर्मिनेशन परसेंटेज. Germination percentage is basically number of viable seed to the total number of seeds into 100. ठीक है, so this is your germination percentage. If I talk about seed rate, then seed rate is basically what? It is the number of seeds or amount of seeds which is required to grow crop in 1 hectare area. ठीक है, 1 हेक्टेयर एरिया में आपको किसी पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए कितना सीड रिक्वायर्ड है, दैट इज सीड रेट. ठीक है, अमाउंट ऑफ सीड रिक्वायर्ड टू ग्रो crop in 1 hectare, that is seed rate. Number of viable seed or the percentage of viable seed, that is calculated through germination percentage. कि कितने seeds जो हमारे पास हैं. देखो, whenever you have a seed lot, for say this is a bag of seed. ठीक है, अब इस bag में there will be a lot of seeds, right? Now you are using this seed lot for sowing this crop.
what will happen in the seed lot? There will be few seeds which are not viable, means which do not have ability to germinate. अब you will ask me, ma'am, viable का मतलब क्या होता है? Viable means alive, the seeds which are alive, right? If seed is not alive, the embryo inside seed is not alive, then that will be non viable, or that seed will not be able to germinate. तो जब सीड लॉट होता है, उस सीड लॉट में सारे सीड वायबल नहीं होते हैं, ठीक है? ये कोशिश की जाती है, ऑलवेज इट इज टेकन केयर ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन की जब भी हम सीड बना रहे हैं तो जर्मिनेशन परसेंटेज मैक्सिमम हो, बट ऑलवेज अंडरस्टैंड 100% जर्मिनेशन परसेंटेज कभी नहीं हो सकता है, राइट? आप कभी देखोगे अगर आप सीड सोइंग करोगे तो उसमें से भी एक दो सीड ऐसे होंगे जो नहीं ग्रो करेंगे। तो अगेन वो क्यों है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, बट हाँ, the percentage of seeds that has grown is germination percentage of that seed lot. ठीक है, I hope it is clear. I hope it is clear. ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? Let's move ahead to next question. So, okay, before that, seed rate is the number of seeds sown per hectare to achieve optimum plant density and maximum yield. Also, students, whenever we go for seed rate, a particular seed rate is recommended for each crop. You will see that seed rate of rice will be different from seed rate of wheat. Seed rate of wheat will be different from seed rate of maize. Similarly, seed rate of sorghum or cotton or any other crop will be different. So, why these seed rate differ? Basically, this seed rate differ due to again various factor which can be like, अगर कोई plant बड़ा है, right? If we have a cotton plant which is a big plant compared to the rice plant, right? तो for that seed rate will be less, क्योंकि एक हेक्टेयर में आप कम ही seed को accommodate कर पाओगे, बट राइस का प्लांट जो साइज है वो छोटा होता है, तो उसके लिए आप एक हेक्टेयर में ज्यादा सीड्स को अकोमोडेट कर सकते हो, राइट? सो बहुत सारे फैक्टर है जिसपे सीड रेट डिपेंड करता है, एंड ऑलवेज सीड रेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप. एंड सीड रेट क्यों कैलकुलेट किया जाता है? बेसिकली स्टूडेंट, सीड रेट इज कैलकुलेटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी इन आवर फील्ड. ठीक है, इट शुड नॉट बी अ कंडीशन कि हम सीड रेट बहुत ज्यादा या बहुत कम कर ले. वी नीड ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन इन आवर फील्ड. क्यों? क्योंकि हमें यील्ड चाहिए, राइट? अब देखो, प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, क्या होगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा फॉर द रिसोर्सेज, राइट? सो यील्ड कम हो जाएगी. बट अगर हम प्लांट पॉपुलेशन कम कर देते हैं तो क्या होगा? जितनी जगह में 2 प्लांट आ सकते थे, 4 से आपने उतने में किया जाता है, सो दैट वी कैन गेट ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी एज वेल एज वी कैन गेट मैक्सिमम यील्ड. क्लियर? सो आई होप नाउ सीड रेट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, it is clear. Moving ahead to the next question. Okay, broadcasting method of sowing involves. Now this was a question that was asked to you in your previous year also. You have to tell me broadcasting method of sowing involves line sowing, random scattering of seed, using transplanting trays, dibbling each seed manually, or machinerily. What will be the answer? Yes, Mayank, germination is the process in which plant is coming out of the seed, right? So that is germination. Germination percentage is how many seeds have germinated out of the total seed. Clear? Okay. So for this question, students, right answer will be option B. Very good. All of you have given the right answer. Good. So it is just a random scattering of seed. Okay, when we talk about seed sowing method, so students, there are different ways in which seed can be placed in field. ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से we can place seeds into field. So we have different method. First is broadcasting. Okay, broadcasting, which you might have seen generally in India, broadcasting method is used because it is cheaper method and it do not require any special machinery. ठीक है, so in broadcasting what is done? Randomly the seeds are scattered on the field. ठीक है, आपने देखा होगा seed को लेके just आप farmers, they are just scattering the seed on the field. So that is the broadcasting method. But students, इस broadcasting method के disadvantage क्या है कि here we are not able to maintain the distance between two plant. ठीक है, आपने जो seed scattered किया, जो seed जहाँ पे place हुआ वो वहीं पे grow करेगा, right? So आप यहाँ पे optimum distance नहीं मेंटेन कर पाते हो दो क्रॉप प्लांट के बीच में. ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है ब्रॉडकास्टिंग मेथड का. समटाइम्स क्या होता है कि
सीड्स है दे आर टेकन अवे, वो ब्लो हो जाते हैं विद द विंड, ठीक है, वो विंड से दे आर टेकन अवे टू द अदर फील्ड। बट स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ये किया क्यों जाता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ये बेसिकली किया जाता है आपके मीडियम टू स्मॉल साइड सीड में, ठीक है, जितने भी आपके मीडियम टू स्मॉल साइड सीड्स हैं वहां पे ब्रॉडकास्टिंग मेथड फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल साइड सीड है वी विल बी नॉट एबल टू प्लेस वन सीड एट अ प्लेस। स्मॉल साइड सीड होता है जब, तो आप एक एक जगह पे एक एक सीड को प्लेस नहीं कर सकते हो, राइट। जैसे कि आपका कोरिएंडर का सीड है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा सीड है, तो आप एक एक जगह पे एक एक सीड लेके नहीं ग्रो कर सकते हो, तो वहां पे आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती है। और जब हमारे पास छोटा सीड होता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सीड वेट, और कि वो सीड जो हम स्कैटर कर रहे हैं वो इट इज नॉट जस्ट कैरिड अवे फ्रॉम द बाय द विंड, उसके लिए हम उसको सैंड के साथ मिक्स करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सीड को सैंड के साथ मिक्स करके देन वी स्कैटर दैट सीड इनटू द फील्ड, ताकि थोड़ा सा इवनली ब्रॉडकास्टिंग हो और जो सीड है दैट विल फॉल ऑन ग्राउंड, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज डिबलिंग, next method is dibbling. What is dibbling, students? Dibbling is basically a method where a particular implement or tool you can say used, which is known as dibbler, ठीक है, dibbler use होता है dibbling में। and in case of dibbler what is there, so it is something like this, ठीक है। dibbler एक tool होता है जिसमें जिसमें एक particular distance पे there are some spikes attached and these are used to make hole in ground, ठीक है। इस डिबलर से हम क्या करते हैं, अपने फील्ड में we make holes in the ground and उन holes में we place the seed, ठीक है। अब देखो डिबलिंग मेथड में क्या होता है, you can maintain the distance between two plant, also you can maintain the depth of the plant, ठीक है। आप डेप्थ भी देख सकते हो कि कितनी डेप्थ में आपको सीड सो करना है, वो भी मेंटेन कर सकते हो, और कितनी डिस्टेंस आपको रखनी है दो क्रॉप प्लांट के बीच में, वो भी आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज अनदर मेथड व्हिच इज नोन एज डिबलिंग। अनदर मेथड इज ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग। तो ट्रांसप्लांटिंग, कैन यू टेल मी ट्रांसप्लांटिंग कौन से क्रॉप के लिए की जाती है मोस्टली? ओके, transplanting method of seed sowing is mostly followed in which crop? This is a question for you, quickly give me the answers. Okay, so quickly give me the answers. कौन से क्रॉप में ट्रांसप्लांटिंग फॉलो की जाती है? वेरी गुड, राइस में ट्रांसप्लांटिंग फॉलो की जाती है, ठीक है। अब ट्रांसप्लांटिंग में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसप्लांटिंग में हम क्या करते हैं, वी सो सीड, और सीड जर्मिनेशन इज अलाउड एट अ पर्टिकुलर प्लेस जिसको हम नर्सरी कहते हैं, ठीक है। तो नर्सरी में आपने सारी सीड सोइंग कर दी एक साथ, बहुत छोटे से एरिया में आपने पूरे सीड को स्कैटर कर दिया एंड दे आर अलाउड टू जर्मिनेट, ठीक है। आफ्टर seedlings are formed and after 20 to 25 days you will uproot these seedling and you will transfer it to the main field. So when this type of seed sowing method is used, that is called transplanting, and very good, it is followed in rice, mostly it is followed in rice, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, नर्सरी से वी अप्रूव द सीडलिंग ऑफ अराउंड 20 to 25 days old एंड इट इज ट्रांसफर टू मेन फील्ड, और यहाँ पे हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगेन यू कैन मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, यस। नेक्स्ट अनदर मेथड इज यूजिंग सीड ड्रिल, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, some implements are also made, ठीक है, for sowing of seed, they are known as seed drills. Now these seed drills are attached behind tractor, and in the seed drills we place, there is a whole container, ठीक है, where we place the seed, ठीक है। इस container में हम seed place करेंगे and then these seeds are allowed to drop one by one when as this drill is carried by
tractor throughout the field. ठीक है, तो that method where we are using seed drill is called as seed drill method. Clear? So these were different methods of seed sowing. Now moving to the next question. Which tool is used for dibbling? Okay, I have just told you the answer of this question. Dibbling के लिए which tool is being used? Quickly give me the answer. Whether it is hoe, harrow, dibbler, ridger or roller. क्या आंसर होगा? Yes, विशाल, that is not a thumb rule. Means ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर 3 months crop है तो 3 weeks के लिए, या 4 month crop है तो 4 weeks के लिए. It is a general idea. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर फिक्स्ड है. आप 20-25 डेज में यू कैन ट्रांसप्लांट द सीडलिंग. 20 डेज में भी कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ 25 डेज में भी कर लेते हैं, है ना. तो दैट डिपेंड्स. वेरी गुड. आंसर विल बी डिबलर. ठीक है, आंसर विल बी डिबलर. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, इन केस ऑफ डिबलिंग, डिबलर्स आर यूज्ड एंड through these dibblers we can maintain the space between two plant, as well as we can maintain the depth in which we are sowing the seed. ठीक है स्टूडेंट्स, डेप्थ ऑफ सीड सोइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप कितनी डेप्थ में सीड को प्लेस कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज सी, अगर बहुत छोटा स्मॉल साइज सीड है, अगर बहुत स्मॉल साइज सीड है, उसको आपने 5 और 10 सेंटीमीटर डेप्थ में प्लेस कर दिया, एंड नाउ यू आर वेटिंग दैट सीड विल जर्मिनेट एंड इट विल गिव यू क्रॉप प्लांट. सो सॉरी, दैट विल नॉट डू इट. बिकॉज जो स्मॉल साइज सीड है उसका साइज ऑलरेडी छोटा है, उसके पास जो रिजर्व मटेरियल है दैट इज वेरी लिमिटेड, एंड इट कैन अलाउ सीडलिंग टू कम आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. इसलिए व्हाट वी डू, वी सो ऑल स्मॉल साइज सीड अप टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो जितने भी आपके स्मॉल साइज सीड्स होते हैं वो अप टू 3 सेंटीमीटर डेप्थ में सो किए जाते हैं. अगर हमारे पास बोल्ड साइज सीड है, जैसे कि चिकपी बोल्ड साइज सीड है, राइट, तो उसके लिए वी कैन गो फॉर 5 सेंटीमीटर. ठीक है, वी कैन गो फॉर 5 सेंटीमीटर. तो याद रखना है, डेप्थ ऑफ सीड प्लेसमेंट वेरीज फ्रॉम 3 to 5 सेंटीमीटर. क्लियर? ओके, with this moving to the next question. Which sowing method involves the use of nursery and transplanting? I have just told you, now give me the answer. So what will be the answer here? Which sowing method involves the use of nursery and transplanting? Is it broadcasting, dibbling, drilling, transplanting, sowing behind the plow? बहुत easy है. I have just told you the answer, right? So it is option D, which is transplanting. Transplanting में हम क्या करते हैं? We use nursery and then the seedlings are uprooted from nursery and taken to the main field and are transplanted to the main field. Very good. Next question. Optimum depth for sowing seed for most of the field crop. ठीक है, just told you the answer of this question. Optimum depth क्या होती है सीड सोइंग की? Quickly give me the answer. अभी just हमने डिस्कस किया है. ठीक है, वेरी गुड. इट इज 3 to 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ऑप्टिमम डेप्थ क्या होती है? 3 to 5 सेंटीमीटर. सो वी कैन गो फॉर सोइंग of small to medium size seed up to 3 centimeter and bold size seed up to 5 centimeter. Moving to the next question. Which factor does not affect plant population? Now please carefully read all the options and give me the answer. Size of plant, seed rate, fertilizer use, seed color or rainfall. Okay, so students, when we talk about plant population, ठीक है, कौन से फैक्टर है, आपको क्या लगता है किस फैक्टर पे प्लांट पॉपुलेशन डिपेंड नहीं करेगा? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. वेरी गुड, इट इज सीड कलर. सीड कलर पे प्लांट पॉपुलेशन विल नॉट डिपेंड. ठीक है,
it will depend on size of plant. I have told you, bigger size होगा plant का तो plant population कम होगी. आपने देखा होगा orchard में, mango orchard में, there are not hundreds of plants. Okay, there are limited plants because each plant need more space to grow. Then seed rate. What seed rate you have chosen for that particular crop, from on that your plant population will depend. Fertilizer use, whether you have used the nutrients or not, whether you have used the fertilizer or not. If you are not using fertilizer, then again there are high chances of crop failure due to nutrient deficiency, and plant population can decrease, right? And rainfall, if there is a good amount of rainfall, again plant population will be good, right? So very good answer here is option D. Moving ahead to next question, the quinkest pattern involved. Okay, so there are different geometry in which the seed or the crop is planted. So there are different kind of geometry. One of them is quinkest pattern of plant geometry. You have to tell me it involves what? Hexagonal planting, 4 plants forming a square with the 5th plant at the center, random scattering, paired rows, or triangular arrangement. What will be the answer? So students, when I talk about different plant geometry, ठीक है, plant geometry or pattern in which plants are grown, so we have different type of plant geometry, ठीक है. We can have square plant geometry where we are uh, growing crop in square pattern where row to row distance and plant to plant distance is equal. Okay, then a square is formed. Then we can have a rectangle plant geometry where plant to plant distance is less as compared to the row to row distance, as compared to row to row distance. ठीक है. Then we can have a triangular geometry also. Triangular geometry, ठीक है. This kind of geometry can also be followed in your field crops, right? So this triangular geometry can also be there. ये एक hexagonal बन गया basically, but yes, triangular geometry भी होती है, ठीक है. triangular geometry भी होती है जहाँ पे इस तरीके से आपके crops grow करते हैं, ठीक है. So triangular geometry होती है, this is triangular. अब जो ये triangular geometry होती है, इसमें क्या होता है students, the limitation is that it is difficult to lay out. We cannot lay out easily this triangular geometry on the field, so usually it is not followed. Then we can have a hexagonal geometry. Hexagonal geometry you can see ये hexagonal बन गया है, इस तरीके से भी एक geometry होती है. Again it is difficult to lay out, but students एक point आपने याद रखना है कि जो hexagonal geometry है, it can accommodate 15% more plant than your square geometry, ठीक है. square geometry, जो hexagonal geometry है उसमें आपका square geometry से 15% ज़्यादा plant accommodate हो सकते हैं. Last but not the least, we have this quincus geometry or diagonal pattern. So in quincus, what is done? There are crops grown in square pattern first, but in between one filler plant is grown. Okay? So this is called a diagonal geometry or quincus pattern. So basically answer will be option A. 4 plants are grown forming the square and then in between a filler plant is used. Okay, moving to the next question. It is clear, right? Moving to the next question, genetic purity of breeder seeds. Now this is a question of your seed certification topic. Okay, I request you to please cover this topic very well because every year from past 2-3 years question have been asked, is being coming from this particular topic. ठीक है, पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन इस टॉपिक से, तो आपको ये अच्छे से करना है. ओके, ब्रीडर सीड की जेनेटिक प्योरिटी क्या है? जेनेटिक प्योरिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? हाउ मच ट्रू टू टाइप दैट पर्टिकुलर प्लांट इज. ट्रू टू टाइप क्या है? ठीक है, ट्रू टू टाइप क्या है? ठीक है, ट्रू टू टाइप का मतलब होता है कि इफ वी हैव अ वैरायटी ए, ठीक है, वी वांट वैरायटी ए, देन that particular plant that we have or seed that we have of variety A should have all the genetic characteristics of variety A only. Okay,
देयर शुड नॉट बी एनी मिक्सचर इन एनी काइंड ऑफ जेनेटिक्स ऑफ वेराइटी ए। ऐसा नहीं है कि वेराइटी ए के जीन्स में कुछ जीन्स वेराइटी बी के भी इनकॉर्पोरेट हो गए हैं ड्यू टू पॉलिनेशन और एनी अदर मेथड इट कैन हैपन, राइट। तो ट्रू टू टाइप, तो जेनेटिक प्योरिटी मतलब ट्रू टू टाइप प्लांट कितना जेनेटिकली प्योर है, उसके जीन्स कितने प्योर है, कितने ट्रू टू टाइप है, दैट इज जेनेटिक प्योरिटी। एंड स्टूडेंट्स फॉर ब्रीडर सीड जेनेटिक प्योरिटी इज 100%, 100%, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट सीड क्लासेस, तो सबसे पहले सीड सर्टिफिकेशन क्या है। सो स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो सीड प्रोडक्शन हो रहा है दैट happens under particular set of conditions और particular set of norms, कि उसमें जो सीड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे फाइनली फार्मर्स को वो ट्रू टू टाइप हो। ऐसा ना हो कि वो जो सीड्स फार्मर के तक जा रहा है उसमें कोई मिक्सचर हो या इम्प्योरिटीज हो या सीड्स आर ऑफ नॉट गुड क्वालिटी। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली फार्मर का लॉस होगा, राइट, अगर सीड गुड क्वालिटी की नहीं है। तो उसके लिए सीड सर्टिफिकेशन मेथड इज देयर, और इस सर्टिफिकेशन मेथड के अंदर वी इन इंडिया वी हैव 4 क्लासेस ऑफ सीड, ठीक है, 4 क्लासेस ऑफ सीड होती है। तो पहला होता है आपका न्यूक्लियर सीड। न्यूक्लियर सीड स्टूडेंट्स बहुत ही बेसिक सीड हो गया। न्यूक्लियर सीड इज लाइक द इनिशियल सीड लॉट। अगर कोई ब्रीडर है, लाइक फॉर से आई एम अ ब्रीडर एंड आई फाउंड अ पर्टिकुलर वेराइटी, सो व्हाट आई विल डू, आई विल हार्वेस्ट दैट वेराइटी, मीन्स दिस वेराइटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वेराइटी। सो अब मैं क्या करूंगी, इस वेराइटी के सीड्स को मैं स्टोर करूंगी एंड आई विल स्टडी दैट वेराइटी सेपरेटली, राइट, क्योंकि ये कोई नई वेराइटी डेवलप हुई है। तो उस सीड लॉट को जो मेरे पास है अभी उसको मैं कहूंगी न्यूक्लियर सीड। एंड देखो, मैं एक ब्रीडर हूँ, आई वांटेड टू स्टडी दिस न्यूक्लियर सीड, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट ट्रेड दिस सीड विद एनीवन बिकॉज आई विल डू रिसर्च ऑन दिस सीड, ठीक है। तो वो न्यूक्लियर सीड लॉट हो गया, मतलब इनिशियल सीड लॉट को, बेसिक सीड लॉट को न्यूक्लियर सीड बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियर सीड है, इनिशियल सीड लॉट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है, ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है। और स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, जहाँ पे भी हम सीड को ट्रेड करते हैं वहाँ पे टैग कलर दिया जाता है, ठीक है। वो टैग कलर क्या होता है, वो टैग कलर बताता है कि ये कौन से क्लास का सीड है, वेदर इट इज न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, ठीक है। न्यूक्लियर सीड से स्टूडेंट्स 2 टाइप के सीड्स बनते हैं, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर सीड को मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट न्यूक्लियर सीड, ठीक है, जिसको अगेन स्टोर करा जा सकता है फॉर द प्रिजर्वेशन पर्पस। Next, for say if my friend want to study this nuclear seed also, ठीक है, मेरे फ्रेंड है कोई, उनको भी ये न्यूक्लियर सीड जो मेरे को वैरायटी मिली है उसमें भी स्टडी करनी है, ठीक है। तो अब आप मैं क्या करूंगी, मैं अब इस न्यूक्लियर सीड का एक पार्ट अपने फ्रेंड को दूंगी, राइट। तो वो जो फ्रेंड है वो भी एक साइंटिस्ट है फॉर से इन एनी यूनिवर्सिटी, वो उसको फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। देन दिस न्यूक्लियर सीड विल बी स्टडीड फर्दर एट ब्रीडर्स लेवल, तो उसको बोला जाएगा ब्रीडर सीड, ठीक है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, दे हैव दिस ब्रीडर सीड, और वो सीड क्यों होता है, टू स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर वैरायटी। अब ये जो ब्रीडर सीड है ये साइंटिस्ट के पास होता है, और स्टूडेंट्स ब्रीडर सीड का जो टैग कलर होगा दैट इज येलो, ठीक है। ब्रीडर सीड का टैग कलर इज येलो, एंड यहाँ पे जेनेटिक प्योरिटी इज 100%, क्लियर। नाउ फर्दर दिस ब्रीडर सीड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर यूनिवर्सिटीज, अदर फार्म्स विच आर इन्वॉल्व इन सीड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ब्रीडर सीड से बनता है आपका फाउंडेशन सीड, ठीक है। आप जब इस ब्रीडर सीड को फर्दर प्रोपोगेट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तब बनता है आपका फाउंडेशन सीड। नाउ स्टूडेंट्स सी, अब जो है सीड वो नेक्स्ट लेवल तक जा चुका है, अब इसमें प्योरिटी 100% नहीं होगी। सो फाउंडेशन सीड की प्योरिटी होती है 99%, और फाउंडेशन सीड का जो टैग कलर होता है दैट इज वाइट, ठीक है। नाउ दिस फाउंडेशन सीड इज फर्दर प्रोपोगेटेड और मल्टीप्लाइड, एंड फाउंडेशन सीड से बनता है आपका सर्टिफाइड सीड, ठीक है, सर्टिफाइड सीड। सो स्टूडेंट, सर्टिफाइड सीड की भी अगेन प्योरिटी 99 नहीं होती है, इट इज 95 to 99%, ठीक है। और इसका जो टैग कलर होगा वो होगा ब्लू, ठीक है। सर्टिफाइड सीड का टैग कलर होगा ब्लू। आपको टैग कलर याद करने हैं, टैग कलर से ही रिपीटेड क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है।
तो ये 4 क्लासेस फॉलो होती हैं इंडिया में। अब इसके अलावा एक और क्लास होती है विच इज नोन एज रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड ये इंडिया में नहीं फॉलो होती हैं और कंट्रीज में होती है, ठीक है। तो फाउंडेशन सीड से स्टूडेंट्स पहले रजिस्टर्ड सीड बनता है एंड रजिस्टर्ड से फिर आपका सर्टिफाइड सीड बनता है। क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सीड सर्टिफिकेशन का टॉपिक इन ब्रीफ। चलो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन। व्हाट विच सीड क्लास हैज व्हाइट टैग कलर? आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ठीक है। व्हाइट टैग कलर किस सीड क्लास का होता है? क्विकली टेल मी। न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन, सर्टिफाइड, टीएफएल। टीएफएल क्या होता है स्टूडेंट? ट्रूथफुली लेबल सीड। ओके, एक और क्लास होती है ट्रूथफुली लेबल्ड सीड की, ठीक है। अब जो ये ट्रूथफुली लेबल सीड होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, बट यहाँ पे जो फार्मर्स है या सीड प्रोड्यूसर है वो कहते हैं कि हम अपने लेवल पे भी सीड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इंस्पेक्शन होता है बट कोई सीड सर्टिफिकेशन कुछ नहीं होता है। नो प्रॉपर स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स आर बीइंग फॉलोड हियर। तो उस सीड को ट्रूथफुली लेबल सीड बोलते हैं जो फार्मर अपने लेवल पे सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो टैग कलर होता है स्टूडेंट दैट इज ओपल ग्रीन, दैट इज ओपल ग्रीन, ठीक है। एंड यस, टैग कलर ऑफ रजिस्टर्ड सीड इज टैग कलर ऑफ रजिस्टर्ड सीड वाज पर्पल, यस इट इज पर्पल, ठीक है। तो आपने टैग कलर एटलीस्ट याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी फाउंडेशन सीड, ठीक है। हमने पढ़ा था न्यूक्लियर सीड के लिए देयर इज नो टैग कलर, ब्रीडर के लिए इट इज येलो और गोल्डन येलो यू कैन से, फाउंडेशन के लिए इट इज व्हाइट, सर्टिफाइड के लिए इट इज ब्लू, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, what will be the answer here? Truthfully labeled seeds are, now you have to tell me what are truthfully labeled seeds. Your options are not tested for germination, certified by government, tested for purity and germination only, imported seeds, hybrid seeds only, ठीक है। If you know the answer please give me the answer, otherwise I am going to explain it to you. Okay, so answer here will be ऑप्शन सी, ठीक है। सो बेसिकली जो आपके ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर ओनली टेस्टेड फॉर प्योरिटी एंड जर्मिनेशन ओनली, ठीक है। दे आर नॉट टेस्टेड और सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट। वी विल टेस्ट ओनली द प्योरिटी परसेंटेज एंड जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ these truthfully labeled seed, ठीक है। सो tested for physical purity and germination but are not officially certified. Labeling is compulsory, ठीक है, certification is voluntary. So this is about your truthfully labeled seed. Clear? Moving to the next question, the safe moisture content for seed storage. Now students, अभी तक हमने seed production की बात की, अभी तक हमने seed production की बात करी, कैसे seed produce होता है, seed sowing method क्या है ना, then seed certification and all. Now once seeds are produced, they need to be stored. They need to be stored. So proper condition should be maintained in order to प्रिजर्व दिस सीड, बिकॉज अगर ये सीड को हम रफली हैंडल करेंगे आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड दे आर नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली, व्हाट विल हैपन? दे विल स्पॉइल, डिजीज कैन अटैक द सीड। ओके, अगर हमें मॉइस्चर कम नहीं किया सीड का, वी हैव जस्ट हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड एंड स्टोर्ड ऑन इन द गोडाउन with due to high moisture क्या हो सकता है? there can be spoilage in the seed, so seeds need to be stored properly. Okay, so cleaning, proper cleaning, drying, everything is done before storing these seeds. So what is the safe moisture content that should be there in the seeds in order to store it? So answer for this will be very good, option C, 9 to 13%, ठीक है। So basically this is the optimum moisture content. किसी क्रॉप के लिए हमें 8 to 9% चाहिए होगा, किसी के लिए हमें 12 to 13% से भी काम चल जाएगा। क्लियर? So this is the optimum moisture content that is required for seed storage. Again this was your previous year question that was asked, ठीक है। चलो next question is, by which of the following method seed dormancy can be broken? Okay, so there is one more thing which is known as seed dormancy, ठीक है। किस मेथड से सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जा सकता है? यू हैव टू टेल मी।
बट उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड सीड डॉर्मेंसी क्या होती है. सो स्टूडेंट्स, यू माइट हैव सीन कि यू नो sometimes seeds are inactive or they are in a resting phase. Means during that phase they will not germinate. If we'll please place this seed in field, these seeds will not grow. So a proper resting stage or proper time period is required for seed, required by the seed to come to the level where it can germinate if proper environmental conditions are given. ठीक है. So resting stage of seed is called seed dormancy. Clear? So this seed dormancy it can be there in the seed due to different reasons. Sometimes is that the seed coat is very hard. Okay, like a freshly harvested seed will have hard seed coat. Seed coat क्या होता है? सीड का जो कवरिंग होती है, राइट. सीड कोट इज सीड कवरिंग. तो ये कवरिंग बहुत हार्ड होती है. तो उस कवरिंग को जो आपका एम्ब्रियो है, द यंग प्लांट, इट इज नॉट एबल टू ब्रेक इट. ठीक है. तो इस वजह से सीड डॉर्मेंसी होती है कि हम कुछ टाइम तक उसको रखते हैं, जब तक ये विद टाइम ये जो कोटिंग है वो थिन ना हो जाए, उसके बाद उसको हम ग्रो करते हैं. बट देर इज अ मेथड थ्रू विच वी कैन ब्रेक दिस डॉर्मेंसी. उसको कहते हैं स्कैरिफिकेशन. स्कैरिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, हमारे पास सीड है, लाइक उसमें डॉर्मेंसी है ड्यू टू हार्ड सीड कोड. तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसके सीड कोड को ब्रेक करेंगे. ठीक है, वी विल ट्राई टू फिजिकली ब्रेक द सीड कोड ऑफ सीड, ताकि ये इस पे थोड़ा सा जो ये सीड कोड है वो ब्रेक हो जाए, वो थोड़ा सा लूज हो जाए, एंड द सीड कैन इजीली जर्मिनेट. ठीक है, उसको स्कैरिफिकेशन बोलते हैं. नाउ इफ यू कैन सी इन द ऑप्शन, ठीक है, हियर स्कैरिफिकेशन इज given. ठीक है, तो आंसर विल बी स्कैरिफिकेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ सीड ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, एक आपने सुना होगा स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है. तो स्ट्रैटिफिकेशन में क्या करते हैं, वी स्टोर सीड एट लो टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर. ठीक है, तो बहुत ही लो टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर में कुछ टाइम के लिए सीड को रख दिया जाता है इन ऑर्डर टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी. ठीक है, सो दैट इज अनदर मेथड विच इज स्ट्रैटिफिकेशन. ठीक है. वन मोर मेथड इज लीचिंग. अब लीचिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ये तो आपने अपने कॉमन हाउस होल्ड में भी देखा होगा कि जो ब्लैक ग्राम होती है, ठीक है, आप उसको रात को पानी में डाल दो, सुबह तक उसमें छोटे छोटे से यू विल सी द एम्ब्रियो इज कमिंग आउट. ठीक है, यू विल सी द सीड हैज स्टार्टेड जर्मिनेटिंग. तो लीचिंग प्रोसेस वो होती है कि व्हाट वी डू, वी जस्ट सोक सीड फॉर सम टाइम इन द वाटर, सो दैट द इफ देयर इज एनी समटाइम्स जो सीड डॉर्मेंसी है वो कुछ इनहिबिटर्स की वजह से भी होती है कि सीड्स के अंदर कुछ इनहिबिटर्स पाए जाते हैं जो इनहिबिट करते हैं सीड को जर्मिनेट करने में. तो जब हम लीचिंग करते हैं तो वो इनहिबिटर्स डिसॉल्व हो जाते हैं एंड सीड कैन बिकम अगेन द सीड कैन बिकम अगेन वायबल. मीन वो अगेन उसको वो इजीली जर्मिनेट कर सकता है. क्लियर? चलो, स्कैरिफिकेशन इज बेसिकली, देखो आप इसके ना सीड कोट पे स्कार्स लगा देते हो. स्कार्स कैसे कर सकते हो? यू विल फिजिकली ब्रेक द सीड कोट. आप किसी हैमर के थ्रू इस सीड कोट को ब्रेक करोगे. ठीक है, तो वो ड्यू टू दैट स्कार सीड कोट ब्रेक हो जाएगा और सीड विल एबल टू जर्मिनेट. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ टाइप प्लांट टू मेंटेन प्योरिटी इज कॉल्ड. नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट इज टेकन टू मेंटेन द सीड प्योरिटी. ठीक है, आप सीड तो आपका फील्ड में ग्रो कर रहा है, फील्ड में आपके अदर क्रॉप्स भी ग्रो कर रही है. सो हाउ डू यू मेंटेन द प्योरिटी, हाउ डू यू मेंटेन द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ दैट सीड? तो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स टेकन. ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल मी आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन कौन सा वो स्टेप है विच इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ द सीड. बैगिंग, रोगिंग, विनोइंग, क्लीनिंग और ड्राइंग. ठीक है, ईशा, स्कैरिफिकेशन आई हैव टोल्ड यू. स्कैरिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, सीड के सीड कोड को ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कोरिएंडर सीड में भी होता है कि आप उसको ब्रेक करके सो करते हो. क्यों ब्रेक कर रहे हो? क्योंकि सीड कोड बहुत हार्ड है. तो जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो सीड कोड थोड़ा लूज हो जाएगा और जब सीड जर्मिनेट करेगा तो वो जो एम्ब्रियो है इट विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द सीड कोड. ठीक है, चलो, वेरी गुड. आंसर विल बी ऑप्शन बी, रोगिंग. रोगिंग क्या होती है? रोगिंग क्या होती है? एनीबडी, इफ यू कैन टेल मी व्हाट इज रोगिंग इन द कमेंट सेक्शन.
ठीक है, देखो रोगिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑफ टाइप वैरायटी का क्रॉप, ऑफ टाइप वैरायटी प्लांट वैरायटी को we uproot from the field. देखो we are growing rice for say in this particular field, we are doing seed production of rice for variety A. ठीक है, now what happens, whatever seed lot we have used, there are few seeds of variety B also in that seed lot, can happen, right? और जब सीड होता है तो आप उसको पहचान नहीं सकते हो कि ये सीड वैरायटी ए का है, वैरायटी बी का है, क्योंकि पैडी विल लुक सेम. So when the paddy germinate and then you find out कि okay there are some plant in our field which is of variety B, and we do not want that variety B because we need to maintain the genetic purity of variety A. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, we will rogue out, we will uproot the crop of same type from the field. So when same type of off type plant are called, basically off type means which is of different variety of same crop, when they are removed from the plant from the field, that is called roguing, that is called roguing. Yes, moving to the next question, seed village concept mainly promotes. ठीक है, सीड विलेज का कंसेप्ट क्या है और वो क्या प्रमोट करता है, यू हैव टू गिव मी आंसर. हाइब्रिड सीड रिसर्च, लोकल सेल्फ सफिशिएंसी इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, गवर्नमेंट ओनली सीड प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर सब्सिडी और फार्म मैकेनाइजेशन. ठीक है, ठीक है, ओके. सीड विलेज देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, सीड विलेज इज अ विलेज, ओके, अ विलेज और अ डेडिकेटेड एरिया जो सिर्फ सीड प्रोडक्शन ही करते हैं. ठीक है, ये विलेज जो है यहाँ पे जितने भी फार्मर्स होंगे दे विल ओनली डू द सीड प्रोडक्शन. ठीक है, दे विल ओनली डू सीड प्रोडक्शन. क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि दे कैन पूल देयर लैंड एंड दे कैन यू नो डिवाइड द एक्सपेंसेस, जो भी उनको टूल और इम्प्लीमेंट लग रहा है उस सीड प्रोडक्शन के लिए, वो उस एक्सपेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे सीड विलेज, डेडिकेटेड विलेज विच आर ओनली डेडिकेटेड टू प्रोड्यूसिंग सीड आर कॉल्ड सीड विलेज. अब ये क्यों प्रमोट किया जाता है, क्योंकि जो लोकल फार्मर है दे कैन बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन सीड सप्लाई. ठीक है, तो उसके लिए दीज आर सीड विलेज. सो बेसिकली इट इज द लोकल सेल्फ सफिशिएंसी इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन. ठीक है, ओके. सो हियर यू वांटेड टू नो अबाउट विनोइंग. विनोइंग क्या होती है, विनोइंग इज अ प्रोसेस. ठीक है, तो you might have seen that people what people do, they collect the grain. ठीक है, एक कंटेनर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसपे लोग लाइक फॉर से दिस इज सम पर्सन हु इज डूइंग विनोइंग. ठीक है, ये पर्सन विनोइंग कर रहे हैं. अब विनोइंग क्या होता है, बेसिकली विनोइंग इज रिमूवल ऑफ चैफ फ्रॉम योर ग्रेन्स. तो अब जब आपने हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग में आपने सीड को सेपरेट किया, बट सीड के साथ साथ कभी कभी डर्ट मटेरियल और चैफ मटेरियल भी आ जाता है. अब हमें सीड को साफ करना है, मीन्स दिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग सीड. तो विद द हेल्प ऑफ विंड, तो क्या करेंगे, दिस पर्सन विल होल्ड सीड एट पर्टिकुलर डिस्टेंस एंड दे विल अलाउ सीड टू फॉल ऑन द ग्राउंड. जो जब सीड ग्राउंड में फॉल करेगा, ड्यू टू यहाँ पे फैन लगाया होता है या फिर नेचुरल विंड की हेल्प से, जो भी इसमें लाइट पार्टिकल्स हैं या लाइट मटेरियल है विच कैन बी चैफ और विच कैन बी एनी डर्ट पार्टिकल, वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हवा के बहाव में जो चीज़ें सेपरेट हो सकती हैं उसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम आर मेन सीड. ठीक है, जो सीड होता है वो हेवियर होता है, वो यहीं पे फॉल करेगा और ड्यू टू दिस विंड जो भी लाइट मटेरियल है दैट विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सीड. ये विनोइंग प्रोसेस होती है. क्लियर? With the help of wind we are separating the chaff from the seed, that is winnowing. ठीक है, what is seed multiplication ratio? Okay, now give me the answer. Option is ratio of yield to area, number of seeds produced from one seed, ratio of germinated to total seed, crop to weed ratio, ratio of moisture to dry matter. Okay, seed multiplication ratio. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. सीड मल्टीप्लीकेशन रेशो क्या हो सकता है आउट ऑफ गिवन ऑप्शन? गिव मी द आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. आई कैन सी राइट आंसर्स कमिंग. इट इज ऑप्शन बी विच इज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन सीड. देखो, सीड मल्टीप्लीकेशन मीन्स ये एक सीड कितने में मल्टीप्लाई हो सकता है. ठीक है, आपने एक सीड सो किया. ठीक है, यू हैव सोन वन सीड. अब ये सीड जर्मिनेट होगा, इट विल फॉर्म
इट विल फॉर्म फ्लावर, और इस फ्लावर के अंदर आप मल्टीपल सीड्स होंगे, राइट। तो फॉर से एक सीड से आपको 100 सीड्स मिल रहे हैं, 100 सीड्स मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉप के, तो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या हो गया कि 1:100, आपको एक सीड से 100 सीड मिल रहे हैं, तो दिस इज सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, ठीक है। ओके, चैफ क्या होता है? चैफ देखो, आपने जब, अगर आपने हार्वेस्टिंग नहीं देखी, बट आई सजेस्ट यू, ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस है, आप एक बार यूट्यूब में वीडियोस देख लेना कि विनोइंग क्या होती है, हार्वेस्टिंग कैसे होती है। ये होता है बिकॉज प्रैक्टिकली थिंग्स आर डिफरेंट, और यहाँ पे हमें चीज़ें समझ नहीं आती है। चैफ क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स? देखो, पैडी है, पैडी है, ठीक है, लाइक फॉर से राइस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमने पैडी हार्वेस्ट किया, ठीक है। अब पैडी में क्या होगा कि कुछ ग्रेन्स आर, जो ग्रेन्स है वो अच्छे साइज के होंगे, दे विल बी हेवियर, दे विल बी फिल्ड विद द राइस, ठीक है। बट कुछ क्या होते हैं, दे आर जस्ट द कवरिंग, मीन्स उसके अंदर जो राइस है वो डेवलप नहीं होता है, ठीक है। ऑल्सो जब आप हार्वेस्टिंग करते हो, ये जो राइस है वो मेच्योरिटी स्टेज में ऑलरेडी आ गई है, ये जो प्लांट है पूरा ड्राई हो चुका है, तो उसके साथ ये ड्राई प्लांट भी जब कट होता है तो इसका भी कुछ पार्ट उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वो एक अनवांटेड चीजें हैं जो हमारे सीड के साथ आ जाती हैं। तो जब हम विनोइंग करते हैं या फिर किसी और मेथड से इसको सेपरेट करते हैं, तो चैफ को हमें हटाना। चैफ मीन्स अनवांटेड पार्ट दैट इज मिक्स विद योर सीड्स, ठीक है, उसको चैफ बोला जाता है। ओके, चलो मूविंग टू द PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सीड सोइंग स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन द फील्ड इज डन? What will be the answer? I have already told you, and we have discussed. This was the question that we have already discussed. You're welcome, Mayank. Okay, क्या आंसर होगा? Quickly give me the answer. ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन द फील्ड किस मेथड में होता है? इट इज इन ब्रॉडकास्टिंग। वेरी गुड, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a seed packet carrying blue color certificate denote which of the following type of seed? ठीक है, ब्लू कलर का सर्टिफिकेट अगर सीड किसी सीड पैकेट में है तो उससे हमें क्या पता चलेगा वो कौन सी क्लास का सीड है? What will be the answer? Quickly give me the answer. Very good. Answer will be certified seed, right? Option D will be the correct answer. Clear? So I have discussed already what are different types of seed classes and their certificate color. Chalo, next question is, which of the following certificate is issued for nuclear seed by the producing breeder? ठीक है, now students, this is something different which we haven't discussed, but अगर आपको आंसर पता है please give me the answer. ठीक है, so न्यूक्लियर सीड मैंने जैसे बताया था कि ये बहुत इनिशियल सीड है किसी नई वैरायटी का, ठीक है। अब इस सीड के लिए एक सर्टिफिकेट मेंटेन किया जाता है, जिस सर्टिफिकेट में इस सीड की एंसेस्ट्री लिखी जाती है, लाइक कि ये सीड जो है कौन से पेरेंट्स से डेवलप किया गया है, कितने बार इन पेरेंट्स को क्रॉस कराया गया है, कौन कौन सी वैरायटी इसमें इस क्रॉस में इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ फैमिली ट्री काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर सीड है उसके लिए सर्टिफिकेट विच इज नोन एज पेडिग्री सर्टिफिकेट इज मेंटेन्ड, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक सीड टाइप है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सीड एक्चुअली ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किस वेराइटीज के क्रॉस से ये वेराइटी बनी है। सो फॉर ऑल दैट इज मेंटेन्ड विच इज कॉल्ड एज पेडिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विंकस सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज फॉलोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? Okay, now you have to give me the answer of this question. जो क्विंकल सिस्टम है वो किस टाइप की क्रॉप्स में यूजुअली फॉलो किया जाता है? ठीक है नितिन, देखो नितिन, अगर आप वेबसाइट पूछोगे तो ICAR की ई कोर्स की वेबसाइट है, ठीक है। देखो, जो मटेरियल मैं लेके आ रही हूँ दैट इज बेस्ड ऑन द मटेरियल दैट वी हैव कंपाइल्ड फॉर आर रेगुलर बैचेस, राइट। बट आप ICAR की ई कोर्स वेबसाइट में जाके टॉपिक वाइज चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो एंड यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। अदरवाइज तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी है जहाँ से आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है। सो बेसिकली BSc एग्रीकल्चर का एंटायर कंटेंट, एंटायर कोर्स हैज़ बीन अपलोडेड इन दीज टू वेबसाइट। तो टॉपिक वाइज भी अगर आप ढूंढोगे, लाइक अगर आप
सीड एंड सोइंग TANU करके भी सर्च करोगे तो आपको उस पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, आंसर विल बी हियर फ्रूट ट्रीज। सो स्टूडेंट्स, क्विंकस मेथड क्या था, जिसमें हम 4 प्लांट्स को इन अ स्क्वायर फॉर्मेट वी वर सोइंग, वी वर प्लांटिंग, और बीच में एक फिलर प्लांट था। तो यूजुअली ये क्यों फॉलो किया जाता है, देखो, लाइक फॉर से इफ आई वांट टू एस्टैब्लिश अ मैंगो ऑर्चर्ड, अब मैंने क्या किया, मैंगो को ग्रो किया। अब मैंगो के बीच की अगर मेरी डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस 10 मीटर है, और मैंगो प्लांटिंग मटेरियल लाइक मैंने कोई ग्राफ्ट भी यूज किया है, तो it will take 7 to 10 years for this mango to develop into complete tree, and then it will give me the harvest, right? So what I can do, I can utilize the space between this mango tree, जब तक ये मैंगो बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो तब तक मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ छोटी क्रॉप्स जैसे कि पपाया, गुआवा और सपोटा, दे कैन बी ग्रोन इन बिटवीन। तो फ्रूट ट्रीज के केस में ज्यादातर ये क्विंकस मेथड को फॉलो किया जाता है। Yeah, I totally understand, Vishal. See, the websites are heavy, but see, you have to do it because the thing is, there is no particular book which is dedicated, which is, which I can suggest you for the dedicated preparation of NABARD. अगर आपको books पढ़नी है, तो books के लिए I suggest कि हाँ, आप फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यान पढ़ सकते हो, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के नहीं हो। बट वहाँ से भी अगेन दैट बुक विल कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। वहाँ पे कुछ टॉपिक्स और कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस के नहीं हैं, बट हाँ, जो आपके सिलेबस के हैं और आप बुक से पढ़ना चाहते हो, यू कैन कवर इट फ्रॉम देयर, ठीक है। बट उसके अलावा भी आपको बहुत सारी और चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ऐसा है, ARD के लिए स्पेसिफिकली देर इज़ नो वन सोर्स आई कैन टेल यू कि इस सोर्स पे आप जाओ, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। आपको रिसर्च करनी ही पड़ेगी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो, अगर इसी वेबसाइट बहुत हैवी लग रही है ना, तो इसमें इतना इन डेप्थ पढ़ना ही नहीं है हमने, ठीक है। हमने क्या कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, हमें बेसिक कंसेप्ट समझने हैं। कोई टॉपिक आपने सर्च किया, लाइक आपने मल्टीपल क्रॉपिंग टॉपिक सर्च किया TNU की वेबसाइट में, तो आपको मल्टीपल क्रॉपिंग के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पता चली कि मल्टीपल क्रॉपिंग ये है, इस तरीके से होती है, बस उतना ही आपने पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आई टोटली अंडरस्टैंड, वेबसाइट भी हैवी है, कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा है कवर करने के लिए, बट येस, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत डिफरेंट सोर्सेज को रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. If you want the PDF, you can get it from our Telegram channel. So that's all. Now you can ask me your queries. Okay. Any other queries? ठीक है. Before taking your queries, please do share your feedback again and again. I'm asking you guys. But if you have any kind of feedback, please share that at feedback@edutab. Okay, this is our mail ID at edutab.co.in. This is our feedback mail ID जिसमें आप अपने feedback share कर सकते हो regarding these classes. If these are helpful, please let me know and I would love to read your feedbacks. ठीक है. देखो, NABARD के लिए क्रैश कोर्स के लिए आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, राइट, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि वी हैव लॉन्च्ड क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज. You can just visit our website. You can just type edutab.in on the Google and you will have to just go to the courses part. This courses, then NABARD Grade A course. Okay, then here you will find, you have to scroll down. So a crash course and everything is there. ठीक है, crash course, everything is there. See, you can see phase 1, phase 2 test series, then live crash course and everything. So I request you to apply this coupon code to get extra discount. Okay, so that was it regarding course. Anything else anybody want to ask? You're welcome. You're welcome, Sonal. You're welcome, Pooran. ठीक है. NABARD Grade A just for the ARD part, there is no any separate course. ठीक है, आपको पूरा ही कोर्स लेना पड़ेगा. ARD के लिए कोई अलग कोर्स नहीं है. ठीक है. देखो, अगर आपको क्रैश कोर्स नहीं लेना है ना स्टूडेंट्स, वन मोर सजेशन कि वी आर अबाउट टू लॉन्च QRB. हम अपना क्विक रिविजन बैच भी लॉन्च कर रहे हैं. ठीक है, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होने वाला है, तो आप उसको ले सकते हो, क्विक रिविजन बैच को ले सकते हो. वहाँ पे भी अगेन सारे टॉपिक्स कवर होंगे ARD के. तो देर विल बी 4 क्लासेस. उन 4 क्लासेस में आपका सारा कंटेंट कवर होगा और उसके साथ साथ आपको समरी शीट वगैरह भी मिल जाएंगी.
तो जब भी ये बैच लॉन्च होगा, यू कैन रजिस्टर इन दिस एंड यू कैन जॉइन इट इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर कंप्लीट क्रैश कोर्स. ओके. ओके, थैंक यू विशाल. रिगार्डिंग कितने का है कोर्स, तो यार यू हैव टू गो टू द वेबसाइट एंड यू हैव टू चेक इट बाय योरसेल्फ. ओके. एनीथिंग एल्स? ओके, क्विक रिवीजन बैच अभी लॉन्च नहीं हुआ है मयंक. व्हेनेवर इट विल बी लॉन्च्ड, आपको एक अनाउंसमेंट दे दिया जाएगा फॉर दैट. देन यू विल गेट द लिंक. ओके, देन यू विल गेट द लिंक एंड एवरीथिंग फॉर QRB. अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट वी आर अबाउट टू लॉन्च इट. ओके. चलो, anything else? I don't think now any queries left, and I think I have covered all of your queries. So once again, thank you so much. Thank you so much for joining the session. I wish you all the best. Continue, keep reading, keep studying. Okay. Now it's high time. जितना जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ लो अभी, ठीक है. Cover all the static series that are previously there on the YouTube. If you are doing the self preparation, ठीक है. चलो, that's all. Have a great day ahead. Thank you.